It's clear they want an opposition mukt Lok Sabha, and presumably they'll do something similar in the Rajya Sabha. I think at this point we have to really start, unfortunately, writing the obituaries for parliamentary democracy in India. See, in a single word I can say that it is nothing but an anarchy being played inside the parliament. सभापति जी कहते हैं कि आपने संसद की मर्यादा भंग करी, इसलिए आपको सस्पेंड किया जा रहा है। ये कौन सी परिभाषा में सरकार से सवाल पूछना संसद की मर्यादा भंग होती है? पुलिस किसके हाथ में है? वो सारी होम मिनिस्ट्री के नीचे है। तो क्या हो जाता अगर वो 5 मिनट आते और कहते जनाब ये हो गया है, हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? जो वातावरण अब हम देख रहे हैं, जहां हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं संसद में, तो मैं समझती हूँ कि यह टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। एक रूल सेट का एक नया मुकाम सेट किया जा रहा है कि इस नई पार्लियामेंट में सिर्फ नींद की गोली खा के आ जाओ सुबह, क्योंकि मुंह नहीं खोलना है, कान आंख कुछ नहीं खोलना, सवाल कुछ नहीं पूछना है। विपक्ष का काम क्या है? सवाल पूछना। अब सवाल पूछेंगे तो बाहर फेंक दिए जाएंगे। जिनकी वजह से ये हाउस में वो कनस्टर कांड हुआ, उन लोगों को सस्पेंड करने की बजाय जो लोग सच की आवाज उठा रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं, उनको आज स्पीकर साहब ने सस्पेंड किया है। It's clear they want an opposition mukt Lok Sabha, and presumably they'll do something similar in the Rajya Sabha. I think at this point we have to really start, unfortunately, writing the obituaries for parliamentary democracy in India. The basic principle of parliamentary accountability has been violated by the Home Minister not coming to the House to talk about what he's been telling the media outside, and secondly to initiate a discussion, which would have been the right thing to do, neither of which has happened. Then when opposition protested that, demanding it, they were suspended. So today, in solidarity with my colleagues, I too joined the protest, and everybody literally who was present today has been suspended for the rest of the session, which means that they want to pass their bills without any discussion. I think it's a betrayal of parliamentary democracy. It's a betrayal of what Parliament is all about. It's a betrayal of the basic standards, principles and conventions by which this House should be functioning. You know, when we speak of parliamentary decorum, and we talk in terms of what the right things are to be done in Parliament, there's also a responsibility on the part of the government and the establishment of this country to actually let things work properly, to encourage the opposition to participate. When our side was in power, we took very seriously the role of the parliamentary affairs side to ensure that the opposition is brought along. Instead, today what we have is a completely one-sided and unfair process. See, in a single word I can say that it is nothing but an anarchy being played inside the parliament. Anarchy being played inside the parliament. They don't have even an iota of faith upon the parliamentary system in our country. So that is why it is nothing but an anarchy. गृह मंत्री का जवाब नहीं बनता है, जो क्योंकि संसद की सुरक्षा का मामला वो संसद स्पीकर के विशेष अधिकार में आता है। हुजूर मुझे ये बताइए, पुलिस किसके हाथ में है? वो सारी होम मिनिस्ट्री के नीचे है। तो क्या हो जाता अगर वो 5 मिनट आते और कहते जनाब ये हो गया है, हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? कि प्रोटेस्ट कब तक चलता रहेगा? जब तक वहाँ एक भी रहे। Parliament has been totally delegitimized. This is to lay the framework of passing the most draconian laws in Parliament, which will turn this country into a police state. देखिए, बड़ा अजीब है कि सभापति जी कहते हैं कि आपने संसद की मर्यादा भंग करी, इसलिए आपको सस्पेंड किया जा रहा है। ये कौन सी परिभाषा में सरकार से सवाल पूछना संसद की मर्यादा भंग होती है? संसद की मर्यादा, जब संसद में गालियां दी जाती हैं तब संसद की मर्यादा भंग नहीं हुई। उस सांसद को आज तक ना सस्पेंड किया गया, ना कोई कार्रवाई की गई। लेकिन जब बीजेपी के सांसद के पास पर संसद पे हमला करने वालों को लाया जाता है, उस सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई होम मिनिस्टर प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं, लेकिन
सरकार से सवाल पूछना संसद की मर्यादा भंग करना कब से हो गया, ये समझ में नहीं आता। आज फिर 40 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड किया गया है, पता नहीं। और दानिश अली से तो पता नहीं क्यों डरते हैं। मैं तो सुबह में आज उस वक्त था भी नहीं, मेरा नाम भी लिख दिया। धन्यवाद करता हूं मैं कि कम से कम आपने मुझे भी सस्पेंड किया। आज लगभग 40 से ज्यादा एमपी सस्पेंड हुए हैं और कल भी लगभग राज्यसभा और लोकसभा को मिला के 80 से ज्यादा एमपी सस्पेंड हुए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एक डेमोक्रेसी सेटअप के लिए। जो वातावरण अब हम देख रहे हैं, जहां हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं संसद में, तो मैं समझती हूँ कि यह टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट ने इतने सारे एमपीज को सस्पेंड किया है, इट इज अल्टीमेटली द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। मैम आज क्या वजह रही, क्या हुआ था आज एग्जैक्टली? वी जस्ट वांटेड कि होम मिनिस्टर साहब आए और जो 13 दिसंबर को जो घटना हुई है उस पर बात करें और सांसदों की बात सुने। दैट वाज द ओनली इशू। एंड वी आर ऑल्सो वांटिंग कि जो 13 हमारे एमपी सस्पेंड हुए हैं तो उनको रिवोक किया जाए उनका सस्पेंशन। दिस वाज ऑल द इशू। मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। क्या सोच के ये नया संसद बनाया जे इसको लोकतंत्र का कब्रिस्तान बनाना है। जो पार्टी खुद कहती थी, जेटली जी, सुषमा जी खुद कहते थे कि डिसरप्शन इज अ पार्ट ऑफ डिसेंट। अब जब कुछ चीज की चर्चा करना चाहते हैं और सुनवाई नहीं कर रही है सत्ता पक्ष, तो फिर शोर मचाने के अलावा हल क्या है? अब आपने सारे विपक्ष को निकाल के बाहर फेंक दिया। जिस एमपी के कर के पासेज मिले थे उस एमपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये एक क्या नया एक रूल सेट का एक नया मुकाम सेट किया जा रहा है कि इस नई पार्लियामेंट में सिर्फ नींद की गोली खा के आ जाओ सुबह, क्योंकि मुंह नहीं खोलना है, कान आंख कुछ नहीं खोला, सवाल कुछ नहीं पूछना है। विपक्ष का काम क्या है? सवाल पूछना। अब सवाल पूछेंगे तो बाहर फेंक दिए जाएंगे। मैं तो हैरान हूँ ये लोकतंत्र में क्या हो रहा है। बहुत दुख की बात है ये गर्मा गिराने की। अब आइए, कभी आपने डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में इंडिया की ये भी नहीं तो देखा होगा कि इतने सांसदों का निलंबन एक साथ हो। एक हुए, दो हुए, 4 हुए या 6 हुए, मुझे तो नहीं ख्याल आता कि इससे भी ज्यादा हुए होंगे। इतने करीब करीब सैकड़ों सांसदों का निलंबन ये दिखाता है कि सत्ताधारी पार्टी बहुत एरोगेंट हो गई है। और सत्ताधारी पार्टी क्या हो गई है? सत्ताधारी पार्टी के 1-2 टॉप पर बैठे हुए, शीर्षस्थ पर बैठे हुए 1-2 लोग, कितनी एरोगेंसी है, कितना गरूर है, ये आप नहीं देखते। आफ्टर ऑल हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जब संसद में घुसता है तो मत्था टेकता है सीढ़ी पर। और क्या वो संसद में आकर के जो अपोजिशन पार्टीज ये मांग कर रही हैं लगातार कि आकर के जो पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है उस पर एक स्टेटमेंट दे दे, वो क्यों नहीं आता भाई? क्या ये एक इतना गुरूर जो हो गया है उसकी एक हद है। और तो और एक कहते सत्ता का नशा सिर पर चढ़ गया है और कहते हैं जिससे दिमाग खराब हो गया है। सच की बात करने वाले, सवाल पूछने वाले आज जितने भी माननीय सदस्य हैं उनको हाउस में सस्पेंड कर दिया गया। और मैं समझता हूँ कि जो लोग हाउस में गाली दे रहे हैं, जिनकी वजह से ये हाउस में वो कनस्टर कांड हुआ, उन लोगों को सस्पेंड करने की बजाय जो लोग सच की आवाज उठा रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं, उनको आज स्पीकर साहब ने सस्पेंड किया है। मैं समझता हूँ कि देश की जो सरकार है प्रेशर के साथ अपनी बात मनवाना चाहती है। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग नहीं मानेंगे और सारा भारत देख रहा है कि किस तरीके से गंदी राजनीति है जो आज संसद के अंदर हो रही है। सो हम इसका सब एक है और हम इसका डट के जवाब देंगे, डट के मुकाबला देंगे।